as as I was telling you, in the function which is data, and we have what if analysis, and we have goal seek data table. Along with that, we have scenario manager, which is less useful. So what do we do in scenario manager? We simply create many scenarios, like I have created here in the main sheet, which was the main sheet. I have created a few scenarios. So this was the main sheet. I tried to create a new scenarios, but there is no use to it, right? So I have just went there and I said data, what if analysis, scenario manager. एंड मैंने यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट किए कि बूम होता तो क्या, साइक्लोन होता तो क्या, लॉकडाउन लग गया तो क्या. एंड यू जस्ट हैव टू सिंपली क्रिएट इट. आप बोलो ऐड, मैं बोल रही हूँ एक सिनेरियो है कि लेट्स से सुनामी आ जाती है तो क्या, what will happen if the tsunami comes. All right, so what will happen if tsunami comes. Okay, so I will say आपका जो ये O6 है, ये प्राइजेस इतनी हो जाएंगी, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा. यू हैव टू बेसिकली चेंज इट एंड गिव सम डिफरेंट प्राइजेस की ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी. एंड देन आई विल से ओके एड इट. वो सिनेरियो आपका ऐड हो गया, राइट. एंड देन यू सी यू हैव डिफरेंट सिनेरियोस. फिर आप कोई भी सिनेरियो को बोल सकते हो शो मी दिस सिनेरियो. So the numbers will automatically change and you can see the numbers, how the numbers are changing. Riots हो गए तो क्या sale price होगी, and then the number changes. And then when you click it summary, तो फिर you are आपको in all the scenarios you get a summary that in all the scenarios this will be the units, this will be the buying, this will be the selling. And because cell numbers यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं because cell को कोई नाम नहीं दिया है. When you're working on the sheet, you can name a cell. Like ये एक cell है, इस cell को मैंने नाम दे दिया selling price. ठीक है, तो अब इस cell का नाम हो गया selling price. You can see यहाँ पे SP लिख के आएगा, right? Similarly, you can name a range. Suppose this is a range. इस range का मैंने नाम रख दिया TM. ठीक है, just ऐसे. Now whenever I am doing, let's say I am doing some summation or something, so I have the option to write देखो TM, तो वो automatic select हो गया, right? So that's how you select the range. The purpose was not to say all this. The purpose was that that scenario manager is not really very useful, because of which we learn choose. When you have to create different scenarios, when you have to create your model very dynamic, choose is something which will help you. And this is a very good function, very intelligent function. So you can see I have created a few things here. You can see when I select optimistic, देखो numbers change हो जाएंगे. न्यूट्रल में ये डेटा आएगा. पेसिमिस्टिक में ये डेटा आएगा. तो ये पेसिमिस्टिक का डेटा, ये न्यूट्रल का डेटा, ये ऑप्टिमिस्टिक का डेटा. एंड व्हेन आई एम चेंजिंग दिस डेटा वैलिडेशन बार, ऑटोमेटिकली ये सब आपका चेंज हो रहा है. So how does this happened and how I created all this, I will tell you. And how does all this work? So let's say I just keep it somewhere in aside and I'll show you. You see, all right, so you see this is the selling price, right? And this is now what I will do is, if I have to send someone this sheet, I will hide everything and I'll send only the data which is required. Okay, so do you want me to work on a cleaner sheet, because this has become very messy? Let's do it. I'll just copy this portion. I'll say choose sheet 1 and here I will work on the, I will say values. For the time being, I'm saying values, but we will put up the data. So you see 475, 440. What's the contribution per unit? ये minus ये, this is the contribution into 4000 units. तो फिर what is the money you have earned? 475 में सेल किया, 440 में बनाया, 35 एक यूनिट पे बनाया, into 4000 यूनिट्स. तो टोटल आपने कितना बनाया कंट्रीब्यूशन? इतना. लेट्स से आपका लेट्स से 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है. सो आपका प्रॉफिट विल बी हाउ मच? Your profit will be your profit will be this much, which is 90,000. All right, so now suppose I create different scenarios, which is good, normal
and I will say, bad. So in different scenarios, what I'll do is I'll just copy and I'll just say paste, because if you see this column and this column, ये सब क्या है, formula based है. So I will just give them a very light background, because these are all formula based. इन पे तो formulas लगी हुई हैं. ठीक है, these are the hard coded numbers which you can maybe number of units and fixed cost. ये hard coded numbers हैं to which maybe you can put it some red or blue color, whatever works for you. All right. So now what will I say? I will say अगर good है तो मेरा selling price ज्यादा होगा, right? And variable cost भी let's say मेरा 450 होगा. And what about fixed cost? तो मेरा fixed cost भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, because the situation is very very good. In normal situation somewhat मैं इतनी ही सेल करूंगी, and if the situation is bad I'll do 400 का sales and बहुत ज्यादा प्राइस होगा. Let's say 400 का sales है तो 390 minimum variable cost होगा, right? And ये जो है fixed cost, let's say let me make it in normal situation it will be around let's say 52,000, and in the bad situation it will become 80,000. All right, so bad में आप देखो profit और loss हो रहा है, right? It's a loss, and here it's profit and here it is medium. ठीक है, so now I want to create a situation here where I can say कि कौन सा आएगा. So how you can work, how you can make the choose function work for you. Let's say this is the column which I will use it to make something for you. So I will put in this, एक सेल में बनाती हूँ जिसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ. इस सेल को मैं बोलती हूँ हमेशा रिमोट कंट्रोल. ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल में आप जो भी लिखोगे 1 2 3 अकॉर्डिंगली आगे आप फॉर्मूलाज लगा सकते हो. सो मैं बोलूंगी कि चूज, ठीक है, जो भी रिमोट कंट्रोल में लिखा है, ठीक है, जो भी रिमोट कंट्रोल में लिखा है, कॉमा, अगर फर्स्ट वाला है तो 1 नंबर लिखा है तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, 2 नंबर लिखा है तो ये, 3 नंबर लिखा है तो ये. ठीक है, एंड ये जो रिमोट कंट्रोल है ना उसको हम लॉक कर देते हैं. डन. अब नाउ व्हेन आई ड्रैग दिस ना, so you see what is happening. Now अगर मैं 1 की जगह 2 लिखूंगी तो you see नॉर्मल वाला आ गया. अगर मैं इसको बैड वाला लिखूंगी तो you see थर्ड वाला आ गया, right? So it keeps on changing depending upon the scenarios, right? Now ये 1 2 3 is like मैं बोल रही हूँ कि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब समझो आप इसको 1 बोलते थे, इसको 2 बोलते थे, इसको 3 बोलते थे, इसको किसी को भी 1, किसी को भी 2, किसी को भी 3 बना सकते थे. वो जब सिलेक्शन होता है ना तब आपको ध्यान से लिखना होता है. लेट्स से मैं बोलती हूँ कि चूज, लेट्स से मैं बोलती हूँ कि चूज, ठीक है, चूज, ये रिमोट कंट्रोल है. ठीक है, अगर ये 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये. ठीक है, सो जब देखो यहाँ पे 2 होगा तो वो वाला आ जाएगा. Right now you will say okay this is very nice, but how does a अगर मैं ये शीट किसी को भेज रही हूँ तो उसको कैसे पता चलेगा कि 1 either it is 1 either it is 2, like 1 is for good, 2 is for normal, 3 is for bad. And it is also very difficult for someone to explain to, right? It doesn't looks good, right? कि I should tell कि देखो 1 पे good है, 2 पे normal है. कोई डेटा वैलिडेशन बॉक्स होता है where you can select directly good, normal, bad, तो वो अच्छा लगता है. So what will I do? I will create here something. I will say ifs यहाँ पे जो नंबर है is equals to good, then write down number 1. okay, and if यहाँ पे जो नंबर है is equals to ये वाला normal, then write down 2. and ये जो थर्ड वाला नंबर है, ये इज इक्वल्स टू जो मेरा रिमोट कंट्रोल है. रिमोट कंट्रोल कहाँ गया?
where's my remote control? Remote control is E2, right? So remote control is E2. मैं हाथ से लिख देती हूँ. Okay. So then I want you to write 3. That's it. Do I write something wrong? Let's, write it here because I couldn't see when I was writing. So let me write it somewhere here. Then later on I will put it up. If I will say ये वाला जो number है, if this is equals to ये वाला 1, or let's first create the data validation box. Let's first create that. So I will say data and data validation. Any value nahi, I want a list, and that list is where? That list is here. ठीक है, so done. Now there is a list. यहाँ पे good होगा, normal होगा, bad होगा. तो इस तरीके से हम create करते हैं. ठीक है. So what I will say is, I will say in the remote control box में मैं बोलूंगी कि ifs, remote control को ही change कर देते हैं. ifs, यहाँ पे जो लिखा है, अगर वो इससे मैच होता है, गुड से मैच होता है, ठीक है, गुड से मैच होता है, तो आप 1 नंबर लिखना रिमोट कंट्रोल में, कॉमा. अगर यहीं पे यानी कि C2 में ही राइट, जो लिखा है मैचेस विथ व्हाट, मैचेस विथ नॉर्मल. डू यू वांट मी टू राइट डाउन समवेयर एल्स, मेक द रिमोट कंट्रोल समवेयर एल्स एंड देन पुट इट देयर? But actually we have put up the formula here. That remote control is this button. Everywhere we have put up the formula. So then it will be a problem if we have to, we have to put up the formula again. Here this says, because this is something this. So all right, no problem. We will change up the cell and do it. So let me, bring this E2 here and write down properly. Don't worry, when I'll write 1 here, automatic numbers आ जाएंगे. Number नहीं है तभी वो values दे रहा है. I will write it here so that we can visualize it clearly. If ये वाला cell is equals to good, then write down क्या? 1. ठीक है? Please look at the formula bar. Formula bar में देखो. ठीक है? If again ये वाला is equals to normal, then write down 2. And if ये वाला is equals to bad, then write down 3. Done. So now this is the remote control, and I'll make it something white color and bold. अब आप देखो, जब आप ये वाले numbers, तो जब आप good करोगे, देखो here the values changed. Bad करोगे, bad वाली values आ गई. Good करोगे, good वाली values आ गई, right? Normal करोगे, normal वाली values आ गई. So now what can be done is, इसको remote control को यहाँ पे रख के, data validation box can be kept here, and what can be done is you can hide all the cells, hide everything, सब hide करो, सिर्फ यही दिखेगा, इतना ही दिखेगा. और आप good लिखोगे तो ये आएगा, normal लिखोगे तो bad लिखोगे तो ये वाली वैल्यू जाएंगी. And you can send this sheet to someone, and that person, and also you can restrict the right of that person. How you can do that? आप इस sheet को protect कर दो. तो आप कैसे protect कर सकते हो? Some cells need to be, कुछ cells में this cell is something, we have to allow him to change. बाकी कुछ भी change नहीं करे. होता है ना, आपने देखा है कई बार इंटरनेट पे there are formula based कैलकुलेटर्स, तो उसमें कुछ सेल्स, इनपुट सेल्स, वो लोग आपको अलाउ करते हैं चेंज करना. बाकी आउटपुट सेल्स की फॉर्मूलाज ना आप देख सकते हो, ना आप चेंज कर सकते हो. तो ये वाला जो सेल है ना, आई विल गो इनटू फॉर्मेट सेल्स, प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में मैं क्या बोलूंगी, इसका लॉक निकाल दूंगी. ठीक है? हिडन क्या है कि आप चाहते हो सामने वाले को फॉर्मूला दिखे या नहीं दिखे, तो आप हाइड कर दोगे तो फॉर्मूला नहीं दिखेगी. इफ यू डोंट हाइड इट देन फॉर्मूला दिखेगी. लॉक्ड में क्या है, आपने उसका लॉक हटा दिया, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट. सो आई विल से ओके. वो क्या बोल रहा था, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉक करो या ना करो, बट अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट करा तो फर्क पड़ता है. सो मैंने शीट को प्रोटेक्ट करा, और मैंने पासवर्ड डाला A. ठीक है? और मैं बोल रही हूँ प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ कौन से सेल्स,
लॉक्ड सेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ लॉक्ड सेल्स हटा दिया, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। ठीक है, री एंटर द पासवर्ड टू प्रोसीड। यस, अभी आप देखो, आपको पता नहीं चल रहा होगा शायद, मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। ये देखो, ये डबल क्लिक कर रही हूँ मैं यहाँ वहां, बट कहीं पे भी डबल क्लिक हो नहीं रहा है, कहीं पे भी हो नहीं रहा है, सिर्फ यहीं पे आपको डबल क्लिक करने देगा। दैट्स इट। इसको मैं चेंज कर पा रही हूँ, हाँ, गुड, नॉर्मल, बैड, देखो इसको मैं चेंज कर पा रही हूँ अगर मैंने ये शीट ऐसे किसी को भेजी, बट यहाँ पे देखो मैं डबल क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। देखो, कैन यू सी, आई एम क्लिकिंग इट, आई एम क्लिकिंग इट, देखो ये साइन चेंज हो रही है, बट मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। ओनली थिंग अलाउड इज दिस। तो जो वो कैलकुलेटर्स बनते हैं उसमें क्या होता है, ओनली इनपुट सेल्स आर यू आर अलाउड टू चेंज, फ्यू सेल्स होते हैं जिसका आप लॉक हटा देते हो, और बाकी का आप ऐसे ही रख देते हो अगर आपको इसको अनलॉक करना है। ठीक है, तो आई विल से अनप्रोटेक्ट शीट, व्हाट्स द पासवर्ड, पासवर्ड इज ए। ओके, हो गई अनप्रोटेक्ट। देखो अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ, अंदर सेल जा रहा है, पहले जा ही नहीं रहा था। राइट, सो दैट इज हाउ यू नो, अभी मैं सबको अनहाइड कर देती हूँ, एंड दैट इज हाउ यू नो यू हैव, आई हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन, ऑप्टिमिस्टिक, न्यूट्रल, पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो इसमें तो मैंने न्यूट्रल, इसमें आई थिंक मैंने कैसे बनाया है, ओके, इसमें मैंने मैच फॉर्मूला से बनाया है, मैथ से बनाया है। ओके, सब कुछ मैथ से बनाया है। ओके, सो ठीक है, आप मैथ से भी बना सकते हो, गुड आइडिया। देखो मैच क्या होता है, लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि इज इक्वल्स टू मैच। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो न्यूट्रल वाला है, ठीक है, ये जो जो भी ये बटन है, इसमें जो लिखा हुआ है वो इस पूरे में कौन से स्टेज पे है, तो मुझे बताएगा। देखो 2 स्टेज पे है। ठीक है, लेट्स से मैं न्यूट्रल की जगह ऑप्टिमिस्टिक सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये आपको इसको मुझे सेल को लॉक करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। सो ऑप्टिमिस्टिक वाला अगर हो जाएगा तो वो मुझे बताएगा कि यू नो अगेन आई हैव टू पुट अप द फॉर्मूला कि दिस इज लुकअप एरे एंड मैच टाइप इज 0। राइट, तो अब देखो ऑप्टिमिस्टिक 1 स्टेज पे है, न्यूट्रल डाला, देखो ये अपने आप 2 हो गया, पेसिमिस्टिक डाला 3 हो गया, ऑप्टिमिस्टिक डाला 1 हो गया। राइट, सो सेम ही है, मैंने 1 2 3 उसको किससे कराया, इफ फॉर्मूला से कराया, इन दोनों को लिंक मैंने इफ फॉर्मूला से किया, यहाँ पर हमने मैच फॉर्मूला से लिंक किया है, और अंदर हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाई, हमने बोला कि भाई ये जो रिमोट कंट्रोल बोलता है 1 2 3, ये सिंपल वाला था, और यहाँ पे हमने बोला कि ये 1 2 3 नहीं करना पड़े। सो ऑटोमेटिक बताओ ऑप्टिमिस्टिक कहाँ है, 1 पे है तो ये, 2 पे है तो ये, और